So today we are going to start new chapter, chapter 2. Okay, biological classification. Uh, Before the PT1, we have already done chapter 1. So let us see what is this chapter all about. We have already done the classification. We have understood the need of classification. What is the need of the classification is that we have studied that we have come to know that there are about 2 million species known to us, and if we try to learn their characteristic each one by one, this life will not be enough. Okay? Or even if we uh, minimize our study to a certain organism, then also it will not be possible for us to know about all the organisms. So what is the best ways to know about our study is classify them on the basis of their similarities and differences. Now, what characters will be considered for the similarities and differences? That is again a very important thing. The characteristics which will be considered for the classification, that we are going to study in this chapter. Okay, we cannot simply say that a human being with this color will be one individual and fair color, that is a American, will be other species, and the Negroes will be third species, and those who are tall will be fourth species, and those who are short will. So these are not the characters which we have to consider for classification. So there are certain things which we have to focus on, and on the basis of which the classification is done. Okay, so what are the criteria of classification that we already done? Need of classification, that because such a large number of organisms are there, if you want to study them, it is better to classify them on the basis of similarities and differences. On what categories will be classifying, that we already studied the taxon, that is the kingdom, phylum, class, order, genus, species. If we include family, then after order the family will be there, and then genus and species. Okay, so these are the things which we are to which classificatory categories or the taxons on which the individuals are classified. And then again I said the entire science of classification, there is nothing sure except species. Species will remain as a species. Baki kingdom can change. Earlier it was only 2 kingdom classification, then came 3, and then came 4, and now today we are studying 5 kingdom classification. In world there are some developed countries or some countries, they are following 7 kingdom classification. Then phylum are also, when the kingdom changes, naturally the phylum and the class and the order and the families and the genus, everything will change. What can't change is species. Species is species. Human is human. You cannot change that a human, पहले human था, आज हम इसको human नहीं बोलेंगे, अब हम इसको कोई नया species नाम देंगे. ठीक है, so species is the only concrete thing in the science of classification. Rest all are imaginary. So there are some things which we'll have to study, and then we'll study about the first 3 kingdoms here in this chapter, and the 4th and the 5th kingdom we'll be studying in the following chapters, that is the chapter 3 and chapter 4. Third chapter is about kingdom Plantae, and 4th chapter about kingdom Animalia. In this kingdom will be this chapter will be studying the first 3, that is the Monera, Protista and Fungi. Okay, so that is the introduction of the chapter what we are going to study. Now let me share the book and then we'll continue. So here the book is biological classification. So biological classification. Okay, now since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. We already studied some of the attempts. I said the classification, the earliest classification was based on to the what are good to us, what are bad to us, what are beneficial to us, what are harmful to us, which are not affecting us. Initially, though, human only wanted to know about that what are the species which are beneficial to them. Then they wanted to know about them only. Plus they wanted to know the behavior of those dangerous animals, maybe like lion or tiger or a snake or a scorpion or some other organisms. Okay, so their aim was only to study those organisms, but then slowly they came to know that these all organisms are interrelated. Now grass is there, that is consumed by the goat or cow, which they were interested in. At the same time, grass is being consumed by some other organisms. Now since that particular person who is looking after the grass, who is looking after the cow, his interest is only that this grass should be fed by only or eaten by only cows. So for all other, they are harmful to him.
ठीक है. So वो अलग अलग. अब now this type of classification do not have any base. A thing can be good to me, not so good for others. ठीक है. So that type of classification जो है वो चला नहीं, है ना. However, that was the beginning. That was the beginning. ठीक है. तो ये कह रहा है since the dawn of civilization, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ much before civilization, classification began. सिविलाइजेशन तो तब हुआ जब लोगों ने गांव शहर बसाया, वहां पे जाकर रहने लग गए. उससे पहले ही वो जानते थे कि ये जानवर खतरनाक है, ये जानवर को मैं खा सकता हूँ, इस प्लांट को मैं खा सकता हूँ, इसका फ्रूट अच्छा होता है, इसका फ्रूट पॉइजनस होता है, इसका खट्टा होता है, इसका कड़वा होता है, एंड ऑल. सो एवरीवन हैड देयर ओन क्लासिफिकेशन, एंड बाय एंड लार्ज सम ऑफ द फैक्टर्स यूज्ड टू बी कॉमन, many of character used to be not common also. Now it was done instinctively, not by a criteria where the scientific but born out of the need of the use of their own. मैंने बताया ना क्या कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा नहीं है, कौन सा खतरनाक है, कौन सा नहीं है. दैट वाज द क्राइटेरिया, नो साइंटिफिक बेसिस. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है, देखिए एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट टाइम साइंटिफिक वे में अटेम्प्ट किसने करा, उसने कुछ करेक्टर्स मान लिए. क्या करेक्टर मान लिए? He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs on the basis of their sizes, on the basis of their lifespan. Herbs जो होते हैं वो छोटे होते हैं and they used to die within one season or at the most 1 year. Shrubs जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, bushy होते हैं, highly branched होते हैं. ठीक है. And जो जो ट्रंक है, स्टेम है, ब्रांचेस है, वो बहुत टफ होती है. जैसे नींबू का झाड़, जैसे अनार का झाड़, जैसे अमरूद का पेड़, जैसे चने का झाड़. चने का झाड़ तो चना तो हब हो गया ना, वो तो सीजनल है. ठीक है. सो लाइक दैट, है ना. तो वो पहली बार क्लासिफिकेशन उसने दिया. हालांकि इससे पहले वाले भी सोचते होंगे लेकिन लिखा नहीं. बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही रह जाती है, हमारे साथ में चली जाती है, क्योंकि हमने किसी को एक्सप्रेस ही नहीं किया होता है. ठीक है. He also divided animals into two groups. कौन सा? With red blood and which did not had red blood. So this was the first scientific, उसने scientific point निकाल लिए. Type of the plant and type of the animal on the basis of certain scientific characters. ठीक है. सो ये उसका तरीका था क्लासिफिकेशन का. नाउ लिनियस आ गए. कैरलस लिनियस का नाम हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बिकॉज ही वाज द वन विद द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. उसने दो क्या कहते हैं नामों का बना हुआ नाम वाला क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया. तो इन द लिनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद द किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया वाज डेवलप्ड, एंड दैट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है. तो उन्होंने सबको प्लांट उनको माना जिनमें भी सेल वॉल है, irrespective to whether they are large or small, whether they have one cell or they are multicellular, whether they have green chlorophyll present or chlorophyll absent, whether they are autotrophic or heterotrophic, doesn't matter. If cell wall is there, they are plant. If cell wall is not there, they are animal. ठीक है. क्लासिफिकेशन खूब चला, खूब सालों तक चला. एंड कैरलस लिनियस जो है उसके ऊपर काम किया है. तो जब when he was working, तो he has given he has described so many different type of species even. ठीक है. तो in Linnaeus time, two kingdom classification with Plantae and Animalia kingdom was developed, and it included all the plants and animals respectively. This system was used till very recently. वेरी रिसेंटली मतलब किताब तुम्हारी 15 साल पुरानी है, तो आप सोच लीजिए रिसेंट का क्या मतलब है. ऐसा ही चलेगा जब जब हम एजुकेशन को सबसे लास्ट इंपॉर्टेंस देंगे ना जिंदगी के अंदर, है ना. हर चीज इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट एजुकेशन इन इंडिया. बताइए, आप बोलते फिर हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ोगे लिखोगे ना वो बनोगे नवाब एंड ऑल. ठीक है. लेकिन वो सब जो है वो किताबी ज्ञान नहीं है, मतलब वो सिर्फ फालतू की बातें हैं. उनका कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों से. पढ़ाई का पॉलिटिक्स के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. आप तो पढ़ लीजिए अपनी जिंदगी में. तो ये रिसेंटली बोल रहा है, 15 साल तो इस किताब को ही हो गए, और उस किताब के लिखने से भी बहुत पहले ही जो है 7 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका था. ये फिर भी वो रिसेंटली लिख रहा है. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज देयर बॉडी हैव न्यूक्लियस और नो न्यूक्लियस, दे ऑल विल बी प्लांट. Whether they have ability of photosynthesis or no ability of photosynthesis, they are plant.
तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो कोई अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था, फिर भी कुछ तो मिला, ना मिलने से तो अच्छा था, कुछ तो मिला। तो उन लोगों को उससे खुशी थी, उन्होंने कहा कि यार चलो एक we have got some classification. So this system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote, unicellular, multicellular, and photosynthetic and not photosynthetic. Irrespective to the type of body, that is body, or the type of क्या कहते हैं cells in them, or the type of mode of nutrition, कोई मतलब नहीं है उनका. Only one criteria to decide it as a plant is the presence of cell wall. If cell wall is there, सीधा कह दीजिए प्लांट. Now इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी. So later on we are just kept on modifying it. ठीक है. तो I just now I said in the introduction, I said in the entire science of the classification, the only fact, एक ही चीज सच है, वो है क्या है, स्पीशीज. बाकी सब कभी भी बदल सकता है. Anybody can change it. और नया साइंटिस्ट आएगा कोई, वो बोलेगा अरे ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनको अभी हम यहाँ पे निकालेंगे, है ना. तो देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें कुल मिला के एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करना था. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू द आइदर ऑफ द कैटेगरी. अब उनको ना तो आप प्लांट में डाल सकते ना एनिमल में डाल सकते, ऐसा भी थे. ठीक है. तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी. Hence the two kingdom classification used for long time found inadequate. तो एक नए किंगडम की जरूरत पड़ी, है ना. सो देखिए, a need was also felt to include basic gross morphology and other characteristic like cell structure, nature of this wall, no, and mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary hierarchy, etc. देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे बेस्ड था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल तो कई जगहों पर गड़बड़ कर रहा था. तो अब हमने क्या करा, हमने इसके अलावा कुछ नए पॉइंट इंक्लूड कर दिए. सब यहाँ मैं एक नई चीज बता रहा हूँ आपको. अ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ओनली ऑन वन और अ फ्यू कैरेक्टर इज ऑफन मिसलीडिंग, and such a classification is called artificial classification. A classification which is based only on a few characteristics. ठीक है. ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे हम, ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. मैं इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से. दिस इज नॉट ऑफ आवर चैप्टर, मतलब अभी मैं नहीं पढ़ा रहा इसको, तो दिस कैन बी रिमूव. तो जी आप हटो यहाँ से. ओके, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है देखते हैं. Artificial classification is the one which is based only on one or a few characteristics. Is the one which is based on one or a few characteristics. ठीक है. These are easy to study. एक एक क्राइटेरिया पे आपने बांध दिया कि भैया सब जिसमें सेल वॉल है वो सब प्लांट होंगे, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल होंगे. बट ऑफन insufficient or incomplete and leads to errors. ठीक है. उसमें तो कई गलतियां हो सकती हैं, तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी कुछ नया क्लासिफिकेशन. तो अब हम लेकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन. Natural classification is based on many characteristics. So they are more reliable and evident. ठीक है.
तो वो क्लासिफिकेशन जो है उनको हम ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन मानेंगे, क्योंकि उसमें तो कई सारी चीजें हैं। अब देखिए, पहला क्लासिफिकेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, इट लेड टू द नंबर ऑफ मिस्टेक्स। भैया आप फंगाई को भी, आप बैक्टीरिया को भी जो है, आप जिसकी जो प्रोकैरियोटिक है उसको भी आपने प्लांट में डाल दिया, ह्यूज प्लांट। देयर आर प्लांट्स व्हिच आर लिविंग फॉर 2000 3000 ईयर्स, देयर आर प्लांट्स व्हिच आर reaching to a height of 3000 feet, 300 feet, 300 feet. There are plants which are living for one season. There are plants which are very small. There are plants which produces flower. There are plants which does not flower. अब उसके बीच में आपने क्या घुसा दिया, फंगाई को, बैक्टीरिया को भी घुसा दिया, बिकॉज दे आल्सो गॉट सेल वॉल। सो fungi and bacteria, beside having cell wall, they do not have any characteristic which can fit them in the plant kingdom. ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा साहब, इसको तो आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको बदल दिया। कैसे बदला देखिए, तुम जाओ ने यार, जबरदस्ती लगे हैं यहाँ पे। ओके, तो जो हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू। नाउ हम लेकर के आते हैं, देखिए हम एक एक करके क्लासिफिकेशन इंक्लूड करते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, was introduced by Carolus। वैसे तो पहले से ही चल रहा था, Carolus Linnaeus। ठीक है, अब आए थर्ड किंगडम। A third kingdom was introduced as kingdom fungi। ये नया किंगडम आया, किंगडम फंगाई। क्यों भाई, किंगडम फंगाई को अलग से क्यों बनाया, क्यों? देखिए इसके अंदर कई सारी रिसेंट बातें थी जो कि दूसरों में नहीं मिलती है। देखिए क्या क्या मिलता है इसके अंदर। देखिए, पहला, इट्स सेल वॉल is made up of chitin, which is found in animals। काइटिन तो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स में और इंसेक्ट्स में मिलता, तो ये फंगाई में कैसे कर रहा है? प्लांट्स में तो हमने पढ़ा कि सेल वॉल हमेशा किसकी बनी होती है, द इन प्लांट्स द सेल वॉल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन। ये चीज तो मिल नहीं रही है इसके अंदर, है ना। दूसरी बात, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। photosynthetic and heterotrophic। ठीक है, तो ये भी एक गलत पॉइंट है भैया, इसको प्लांट में कैसे डाल सकते हैं? प्लांट तो हमारे हिसाब से फोटोट्रॉपिक होने चाहिए। ठीक है, दे लैक्स पिगमेंट्स, उनमें कोई क्लोरोफिल या क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्ट वो प्लास्ट, कोई प्लास्ट नहीं मिलता। ठीक है, देन देयर stored food is either glycogen or oil droplets, which are found in animals। तो भैया ये तो प्लांट जैसे रहे ही नहीं, और एनिमल जैसे भी नहीं है। एनिमल में सेल वॉल होती नहीं, इनके पास तो है। तो न तो आप प्लांट के लायक हो, ना आप एनिमल के लायक, बीच के हो गए। ठीक है, तो जो है देयर वाज अ साइंटिस्ट, मिनट आता है क्या नाम, अर्नेस्ट, है ना।
उन्होंने उठा करके इसको कहा है भैया ये दीज आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड एज अ प्लांट, सो वी शुड गिव देम ए न्यू किंगडम। तो इन्होंने इनके लिए एक नया साम्राज्य स्थापित कर दिया और उस साम्राज्य को कहा है अपन ने दैट इज किंगडम फंगस। ठीक है, बिकॉज देयर करेक्टर वर मैचिंग नीदर टू द प्लांट नॉट टू द एनिमल। जस्ट बिकॉज ऑफ वन करेक्टर जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऐसी गलतियां होगी। एक क्राइटेरिया की बेस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऐसी गलतियां होगी। अगर हम एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया मान लें स्कूल के अंदर कि एनीवन हु कैन सिंग विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ सिंगर, अब वो क्या गा रहा है आपको पता ही नहीं है, तो केवल सिंगिंग और एनीबडी हु कैन सिंग विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग ऑन स्टेज। तो आपके पास में आपका 3,500 बच्चों का स्कूल है और आप ना 15-20 दिन तक बैठे रहेंगे तब भी आपका जजमेंट पूरा नहीं होगा। मोर देन हाफ ऑफ द स्कूल विल कम देयर फॉर सिंगिंग, बिकॉज एनीबडी कैन सिंग। मैं भी गा सकता हूँ बाथरूम में और गाता हूँ गला फाड़ फाड़ कर। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन मेरली ऑन वन करेक्टर। इफ इट इज बेस्ड ऑन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक दैट मींस योर क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी अ मिसलीडिंग वन। सो इट शुड इंक्लूड एज मेनी करेक्टर पॉसिबल ताकि आपके आपके क्लासिफिकेशन के अंदर कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमने ये जो है मतलब किंगडम फंगडाई के लिए अलग गांव बसा दिया। अब क्या कहते हैं, मालूम पड़ा कि यार आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी एक साथ लगा के बैठे हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी एक साथ लगा के बैठे हैं। तो एक और साइंटिस्ट है उनका नाम था कॉपमैन। कॉपमैन ने कहा साहब ये कौन सा सिस्टम होता है, तो उन्होंने एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करा। थर्ड किंगडम was introduced as unicellular and multicellular organism। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म cellular organisms were placed in a kingdom called Protista। तो उन्होंने कहा भैया ये ऐसा थोड़ी होता है यार, आप मतलब अमीर गमीर सबको साथ रख लेंगे हैं, जिसके पास में एक घर का एक कमरे का मकान है और एक जिसके पास में हवेलियां हैं। हमारे राष्ट्रपति साहब है, इतने सारे कमरे हैं कि अगर वो सुबह घूमने निकल जाएं अपने राष्ट्रपति भवन के हर कमरों में तो उनकी टांगे दुख जाएगी, वो आधा घूम करके बैठ जाएंगे, वैसे ही बूढ़े हैं वो, है ना। तो जो भी है आई एम just telling that I have nothing to do with the president's this thing capabilities। मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति भवन इतना बड़ा है, अंबानी साहब का भी भवन बहुत बड़ा है साहब, पता नहीं कितने मंजिल का है। एनीबडी कैन टेल मी हाउ मेनी बंगलास आर, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर? सम 16 15 16 फ्लोर और आई थिंक 20 22 23 जो भी है। हमें क्या करना है, हमें कौन सा जाना है, तो फोटो भी नहीं खिंचाते इसका। तो हम क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा मकान एंटीलिया और एक किसी का मकान हो एक कमरे का जिसके अंदर सब कुछ वो उसी में ही कर रहा हो। ही विल स्टडी ऑल्सो देयर, स्टडी टेबल, साइड में बेड, इधर दो प्लास्टिक की कुर्सियां, उधर एक छोटा सा स्टोव किनारे पे रखा हुआ है ना, और डस्टबिन भी वहीं पे रखा हुआ है। एवरीथिंग इन वन रूम। बच्चे आते हैं ना कोटा में, बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, दे आर स्टेइंग इन वन रूम। ठीक है, अब ये वन रूम वाला तो है, उसके अंदर वॉशरूम भी उसी के अंदर होगा, है ना, और बाकी चीजें भी। तो सच्चे कंपैरिजन इज नॉट देयर, है ना। और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म जो जो भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ जो है वो तो उतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकती जितने की multicellular organisms in which the classification in which the organization is better, in which the tissues are formed, organs are formed, systems are formed।
सो थर्ड किंगडम जो बनाया कॉपलन साहब ने, उन्होंने कहा यार ये तो जम नहीं रहा है कि you are classifying, you are keeping all the organisms which, whether the body is made up of one cell or multicellular, whether the tissues are there or not there, organs are there or not there, systems are there or not there, आपने तो सबको उठा के एक ही किंगडम के अंदर फिट कर दिया। ठीक है, तो टू किंगडम के बाद में ये तो हमारा थर्ड किंगडम था ना, फंगाई का थर्ड किंगडम, ये फोर्थ किंगडम है भैया, फोर्थ, दिस इज एक्चुअली फोर्थ किंगडम। तो फोर्थ किंगडम भी हो गया। अब हम बातें करते हैं फिफ्थ किंगडम की, यहाँ पे लिख देते हैं, मेरे पास जगह है। फिफ्थ किंगडम, फिफ्थ किंगडम was introduced as kingdom Monera, which included all unicellular prokaryotic organisms। हाँ, कौन सा होते हैं प्रोकैरियोटिक? जिनकी बॉडी में नन ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली आर फाउंड, इवन न्यूक्लियस इज एब्सेंट, कभी भी नहीं होता न्यूक्लियस में, ओनली वन क्रोमोसोम इज देयर, the cell membrane may fold sometime inside and they may give a structure called mesosome in which some of the activities of the cell taking place, and they show diversity, खूब सारे उनके अंदर करेक्टर्स मिलते हैं। कहीं पे वो जो है वो क्या कहते हैं, हमने पढ़ा कि कहीं पे वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कहीं पे वो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, कहीं पे जो है वो बीमारी कॉज करने वाले हो सकते हैं, कहीं वो पैरासाइट हो सकते हैं, कहीं वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस प्रेजेंट इन द kingdom, the individuals of the kingdom Monera, and that is what there was a need of five kingdom। तो जब हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था तो इट वाज इनकम्प्लीट, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ थर्ड किंगडम। जब हम थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम पढ़ रहे थे, तब भी हमारे क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां नजर आई, तो हमने एक नया फोर्थ किंगडम बसाया। एंड फोर्थ किंगडम में भी वी कम टू नो दैट there are organisms in which the nucleus is not found. There are organisms in which only one cell is there, but no cell organelle are there. There are organisms in which only one chromosome is found. How can you put them together with the all the developed cells? ठीक है, so there was a need and that is why they have been classified। उनको भी यहाँ से expel कर दिया from the kingdom plantae and they are given a new kingdom। उनको एक नया साम्राज्य दिया। ठीक है, तो विभाजन कर दिया हमने उनके देश का, और हमने उनको एक नया देश बना करके दिया। बहुत सारे देशों का विभाजन हुआ, हम जानते हैं, और कई सारे कंट्रीज जो है वो एक भी हो गए। चलिए, तो यहाँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। क्या क्राइटेरिया लिया है, व्हाट क्राइटेरिया हैव वी हैव टेकन और ऑब्जर्व्ड फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ये पूरी समरी है ना। तो व्हाट आर द देयर आर थ्री पार्टिसिपेंट, मीन्स जो एक कोई आया था वो भी चला गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। when somebody think they are better than the teacher, हाँ, तो ठीक है, और कर सकते हैं, इसमें क्या। गुरुजी बहुतों के वो, मतलब हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई जगहों पे गुरुजी गुड़ी रह गए और चेले जी शक्कर बन गए। तो आप हमसे कई गुना अच्छे हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई शुड नॉट डाउट। चलिए, तो पांच किंगडम के क्या क्या कैरेक्टर्स, पांच किंगडम कौन कौन से पहले तो पढ़ लेते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। सेल टाइप की बात करते हैं कि whether the cell is prokaryotic or eukaryotic। तो except in kingdom Monera, rest all are eukaryotic। Prokaryotic is only Monera। Monera is the only type kingdom in which the prokaryotic organisms in which the body is one cell तो eukaryotic में भी हो सकती है, one cell, and no cell membrane bonded organelle are present, no nucleus is ever present, only one chromosome is found, mesosomes are present। ठीक है, and they are very fast breeding, and if they have got cell wall होती है
और वो हमेशा किसकी बनी होगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सेल वॉल, ये नॉन सेलुलर और किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। और प्रोटिस्टा में केवल कुछ किस्में होती है और वो जो है वो सेलुलोज या पैक्टिन वगैरह की बनी रहेगी। यहाँ फंगाई में सेल वॉल होती है बट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज नहीं, इट इज नॉट, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट एंड काइटिनियस, CHITINOUS, काइटिनियस, काइटिन की बनी होती है तो काइटिनियस। ठीक है, तो ये है ना, काइटिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज एक्चुअली फाउंड इन एनिमल्स, तो ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, प्लांट में सेल वॉल विल ऑलवेज बी देयर एंड वो ज्यादातर सेलुलोज की, कभी लिग्निन की, कभी पैक्टिन की, कभी सुबेरिन की बनी हो सकती है। एनिमल में सेल वॉल कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सभी में मिलती है ना, मोनेरा में लिखा है एब्सेंट। नाउ व्हाई एब्सेंट, बिकॉज इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उनके सेल वॉल के साथ में फ्यूज होकर सेल कोट बना लेता है, ये याद रखना आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो ऐसी कोई चीज नहीं होती, बट इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई है विद द सेल वॉल एंड दे मेड वन स्ट्रक्चर व्हिच इज नाउ नोन एज सेल कोट। Now, body organization, so Monera are always made up of one cell. Protista are also made up of only one cell. Fungi are made up of many cells. One cell वाले भी होते हैं, but उन one cell वालों को यहाँ रख देंगे। और multicellular are also there. जो multicellular हैं उनके अंदर लूज टिश्यूज हैं, उनमें कोई खास ऐसा बनने लायक टिश्यू आप नहीं कह सकते। और प्लांट में टिश्यूज एंड ऑर्गन्स मिल रहे हैं, सिस्टम नहीं मिल रहे। एनिमल्स के अंदर आपको और टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे, सिस्टम में मिल सकता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप जानते हैं, मोनोरा वो तो सब तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, वाटरट्रॉपिक भी हो सकते हैं, है ना, वो केमोसिंथेटिक वाले, है ना, वो हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, होते ही हैं हिट्रोट्रॉपिक। और हिट्रोट्रॉपिक वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा जो है दे आर ऑल्सो बोथ टाइप, दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स। एंड व्हेन दे आर हिट्रोट्रॉप्स तो वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। फंगाई आर ऑलवेज हिट्रोट्रॉप, और वो क्या हो सकते हैं, वो पैरासाइट हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं या डिकम्पोजर्स। प्लांटी मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉप, फ्यू आर हिट्रोट्रॉपिक, कसकटा जैसे। ठीक है, एनिमलिया ऑल आर हिट्रोट्रॉपिक। अब वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, होलोजोइक या सेप्लोजोइक। और होलोजोइक में भी वो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, 10th क्लास में, कि वो हर्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं, ओमनीवोर हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टिल दियर आई टॉट यू, नाउ विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। सो आई होप सो कि आज जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड ठीक है, अब मैं और क्या बोलूँ, आप पढ़े हैं, पढ़ते रहें। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे, बाय, टेक केयर।